हाय एवरीवन। आज हम ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने वाले प्रोजेक्ट के रूप में। ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब आप ये देख सकते हो वर्ल्ड वाइड ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ है। हम इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले हैं। मतलब कि प्लेटफॉर्म है लाइक एनएससी। एनएससी की ये ऑप्शन चेन अवेलेबल है एनएससी की वेबसाइट पे, बट उसमें ये सारा पैरामीटर्स नहीं है एक जगह पे, लाइक गामा, थीटा, आईवी, ओपन इंटरेस्ट, चेंजिंग ओआई। ये पैरामीटर्स उसमें है ही नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करने वाले हैं। ये पूरा प्लेटफॉर्म पाइथन में डेवलप किया है और स्ट्रीमलीट हमने इसमें यूज किया है फॉर द फ्रंट एंड और डिप्लॉयमेंट पर्पस। लाइक यू कैन सी द अंडरलाइन प्राइसिंग, ATM strike, put call ratio, and put call ratio we can calculate here by the selecting the rows, how many rows you want to select from the ATM strike. Like I want to select the two rows, so this data will be changed here, and also like put call ratio will be calculated automatically on the basis of this. So this platform we are going to build, like this is the ATM strike here, like it's 25100. It's a right price. You can check the right pricing from the NSE website here. NSE option chain. I just show you the data. Just wait a minute. So it's a Nifty option chain. So here we also Nifty option chain. So you can check the data like 15 25100. Okay, 25100. Okay, so we are getting the correct pricing here. Like it's complete this data, but like here is note the parameters like gamma, theta, IV, open interest, changing, right? These parameters are not available here in this option chain. So we will like solve this problem, and also like if you want to calculate the put call ratio basis on the ATM strike, like how many strike I want to choose, they think so it's also not available here. Okay, so we will solve this problem because the traders who trade regularly, they need the calculation of the PCR put correlation. So it's not feasible. Like I will go on the NSE website and calculate one by one. That will take like huge time. So we will automate this complete process here in our platform. You can sell this platform to everyone. Like you can use the subscription model for this platform. Like you can say that traders like I build the platform and you can buy this. Like you can pay me the subscription fees for this, and this is very good platform. People will pay you for this. Okay. So this and also like I just added a login sign up process also in this here. Like just I show you, just I click on the logout and it will be logout. Okay. So let's try to create new account. We can use Firebase also here, but but currently I did not use Firebase here. But like if we build the complete project, I will use the Firebase here. Okay, so let's try to create a new account. So trading, I just take the trading username and the password, and I click on sign up. And like you can see, the account created successfully, and I can log in now. Okay, I just click on login, and I can get the complete data here. Okay, and I can change this Nifty to Bank Nifty also. It will work. Okay. So I just use the two parameters currently here, but you can add the more parameters here. I will tell you how you can add here. And I use the LLM here, like LLM Gemini model. I use here like I can ask the question to this chatbot like related trading. Okay, so just I ask a question. What is PCR method? In method. Okay. If I ask this question to chatbot here, this will give me the answer here. Okay. So this functionality you will never find anywhere in a trading platform. Okay. So you can see that here it's give me the complete PCR method, like what is PCR and all the things. It provides me all the things. Okay. एंड ही ऑल्सो गिव मी द एग्जांपल ऑफ दिस। ओके, तो आज हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट एक वीडियो में नहीं बनेगा, इसके लिए हमको शायद 3-4 वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाइथन में एक कोड करेंगे जुपिटर नोटबुक में, जहाँ पे कि हम ये पूरा डेटा एक जगह कलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो वो खाली पार्ट आज हम करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हम इसका इंटरफेस रेडी करेंगे, एंड फिर डिजाइनिंग पार्ट भी हम मतलब किसका करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर देते हैं।
And also, like currently, I have noted the max pen here, and if we will build the project where we also add the max pen here. Like we can calculate the max pen on the basis of the stack prices. So we will add this in the future. But currently, like it's mm, no. But currently, max pen noted here. But we will add the max pen here, and also the other parameters we will also add here. Okay. Then go to the part. Okay, we will create a new folder for this project. Okay, projects Gen AI. It's a Gen AI project because we will add the Google Gemini here. Okay, so we will create. Okay, I will come to here and I will go to new folder and I will rename this to YouTube. Okay, and I will create a new file, new notebook here. और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि ऐसे वीडियो हम लेके आते रहते हैं। ठीक है। ओके। तो हम यहाँ पे पहले अब सबसे पहले जो भी इसके लिए नेसेसरी लाइब्रेरीज है उनको हम सबको इंपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद में हम डेटा फेच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इंपोर्ट पांडास एचपीडी एचपीडी इंपोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक है। एंड अब हमको क्या चाहिए सबसे पहले हमको अभी एपीआई भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है कि हम एक एपीआई इसकी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको एनएससी की वेबसाइट पे आना है। जैसे ये देख सकते हो ये पूरी मतलब कि हमारे पास में ओपन हुई पड़ी है एपीआई। आपको सिंपल इसको कॉपी कर देना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको ये डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा ये एपीआई उसके लिए। ठीक है। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एंड उसके लिए मेरे को यहाँ पे अभी हेडर्स वगैरह भी चाहिए होंगे। तो मैं ना उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हेडर्स एंड हेडर्स हमको रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे। हेडर्स में ऐड कर देता हूँ। एंड हमको यहाँ पे कुकीज की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से सिंपल इसको डायरेक्ट ही यूज कर सकते हो। तो ये हमारा हेडर होगा। ठीक है। ये हमारा यूआरएल यहाँ पे और ये हमारे हेडर्स होंगे। ठीक है। ये मैंने एनएससी की वेबसाइट से ही मतलब उसमें नेटवर्किंग में जाके वहां से मैंने फाइंड आउट किए थे। ये है ये जो थिंग्स है। आप इसको सीधा गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। आप वहां से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे हम मतलब कुकीज वगैरह क्रिएट करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो इजीली एक्सेसिबल हो पाए। ठीक है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर सेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम सेशन लिखते हैं रिक्वेस्ट और सेशन। ओके। एंड हम इसको एंटर दबा देते हैं। हमको क्या है ना अब हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी एपीआई पे कि हमको डेटा वो फेच करके दे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे रिक्वेस्ट इक्वल टू सेशन डॉट गेट यूआरएल हमको देना पड़ेगा और हमको हेडर्स देने पड़ेंगे। ठीक है। ओके। ओके। तो यहाँ पे हमको सेशन का अच्छा वो यहाँ पे हमको सेशन करना पड़ेगा। ठीक है। कि हमने यहाँ पर सेशन ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है एंड हम इसको रन करेंगे। ठीक है। नाउ इट्स आस्किंग टू पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। ओके। तो यहाँ पे हमको हेडर्स इक्वल टू हेडर्स करना पड़ेगा फॉर दिस पर्पस फॉर दिस। ओके। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या हमको मिलता है इसमें। ओके। तो यहाँ पे हमको क्या है ना अब हमको रिक्वेस्ट यूआरएल 200 मिल रहा है। ठीक है। 200 का मीन्स ये है कि मतलब कि जो एनएससी का वेबसाइट है वो हमको मतलब परमिशन देता है कि यू कैन फैच ओवर डेटा। ठीक है। अगर यहाँ पे 403 मिलता है या 400 का हमको रेस्पॉन्स मिलता है दैट मीन्स लाइक एनएससी डज नॉट वांट लाइक वी विल फेच द डेटा। ओके। सो उसको भी हम मतलब फैच कर सकते हैं। उसके लिए अलग मेथड्स है वो अनएथिकल मेथड्स है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो। बट अभी हमको रिक्वायर्ड नहीं है तो अभी हम इतना ही करेंगे। ठीक है। तो अभी हम आगे का फिर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आप क्या करेंगे हम इसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे जेसन कन। ठीक है। ऐसे करेंगे हम रिक्वेस्ट यहीं से हम इसको कॉपी कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट जेएसओ1। ठीक है। तो एक बार हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं जेसन कौन। ठीक है। ओके। तो आप देख सकते हो कि हमको हमारा यहाँ पे पूरा डेटा मिल गया है। ठीक है। जैसा डेटा हमको चाहिए था उस तरह से नहीं मिला है बट हम ये अभी इसको उस तरह उस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है। तो ये मैं डेटा इस पे दिखा देता हूँ। देखो ये रहा पूरा डेटा। ये सेम डेटा हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है।
ये आप देख सकते हो, रिकॉर्ड्स हमको मिला है, एक्सपायरी डेट्स हमको मिली है, हमको पीई मिला है, सीई का डेटा हमको मिला है, ठीक है? तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम इसको पहले डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम JSON कॉन कन्वर्ट, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या डेटा है डीएफ के अंदर, ठीक है? ओके, तो डीएफ के अंदर हमारे पास में ये डेटा आया, हमको फिल्टर डेटा चाहिए। फिल्टर के अंदर हमको ये वाला डेटा चाहिए, ठीक है? डेटा के अंदर। तो इसको हमको ये डेटा चाहिए, तो हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो उसका हम कोड लिखते हैं, ठीक है? डेटा हम लिखते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम, एंड हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है? यहाँ पे हमको चाहिए फ़िल्टर, ठीक है? इसको हम रन करते हैं, तो हमारे पास में क्या आता है? हमारे पास में आता है ये डेटा, ठीक है? हमारे पास से फ़िल्टर का कार्य अब आया है डेटा, ठीक है? अब हमको इसको भी फ़िल्टर आउट करना है। हमको इसके अंदर से भी क्या चाहिए? हमको इसके अंदर से चाहिए खाली डेटा, ठीक है? अब हम एक बार चेक करते हैं, ठीक है? ओके, तो अभी हमारे पास में डेटा ठीक से आ रहा है, ठीक है? तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास में फ़िल्टर डेटा आ चुका है, पीई आ रहा है, सीई आ रहा है, ठीक है? अगर हम अभी चेक करते हैं खाली पीई का डेटा, ठीक है? कि पीई का हमारे पास में क्या-क्या डेटा आता है, ठीक है? तो ये हमारे पास में पूरा पीई का डेटा आ रहा है, ठीक है? तो अगर अब मेरे को यहाँ से पीई का जैसे स्ट्राइक प्राइस चाहिए, ठीक है? स्ट्राइक प्राइस अगर मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है? ओके, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ओके, पीई का हमारे पास में डेटा यहाँ पे आ चुका है हमारे पास में, ठीक है? तो हम इसको टू DICT अगर करते हैं हम इसको, ठीक है? तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है? तो जैसे अगर हम यहाँ पे करते जीरो पोजीशन पे हमको चाहिए, एक सेकंड ऐसे नहीं करेंगे, DICT हम यहाँ पे डालते हैं, इसको करते हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, DICT के अंदर जीरो वाला हमको चाहिए, उसके अंदर हमको एक सेकंड इसको रन करते हैं फिर, उसके अंदर हमको चाहिए स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? उसके अंदर हमको चाहिए स्ट्राइक प्राइस, एंड हम एंटर करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा कौन सा था? ये हमारा था निफ्टी का, ठीक है? तो अब एक बार हम लाइव भी चेक कर लेते हैं कि निफ्टी का हमको क्या प्राइसिंग मिल रहा है। NSE ऑप्शन चेन, ठीक है? हम एक बार चेक करते हैं निफ्टी में हमको इस टाइम पे क्या प्राइसिंग है, स्ट्राइक प्राइस क्या है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है? निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस फर्स्ट नंबर है 22,250 है, ठीक है? हमारा क्या आ रहा है? 22,250। ओके, तो मतलब हमारा डेटा एकदम ठीक है। ओके, तो ये हमको यहाँ से मतलब कि पूरा डेटा मिल रहा है। अब एक बार यहाँ पे तो हमको ठीक मिल रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमको यहाँ पे पूरा डेटा मिल रहा है, हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, और मतलब कि ये तो हमारे पास में डेटा आ चुका है, ठीक है? बट अब आप ये बोलोगे कि हमारे पास में खाली ये डेटा है, हमारे पास में जो ये गामा है, थीटा है, वेगा है, ये हमारे पास में कहाँ है? समझ रहे हो? तो ये गामा, थीटा, डेटा ये भी तो हमको चाहिए ना। तो उसके लिए भी हमको क्या है ना, हमारे पास में एक डिफरेंट एपीआई है, हम उससे डेटा को फेच करेंगे, फिर हम मतलब कि उनको दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो हमारा पूरा ये टेबल बन जाएगा, ठीक है? तो अभी आप जैसे देख सकते हो कि इसमें एनएससी का ऑप्शन चेन का डेटा है, वो हमारा एक डिफरेंट एपीआई से फेच हो रहा है, और ये जो गामा, थीटा, डेटा है, ये हमारा एक डिफरेंट एपीआई से फेच हो रहा है, ठीक है? तो फिर तो हम इनको कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे, और हम उसको एक टेबल में शो कर रहे हैं, ओके? तो उसके लिए अभी हमको एक दूसरी वेबसाइट से डेटा को फेच करना पड़ेगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको यूआरएल प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप डेटा को फेच कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी उसको यूज करता हूँ, तो ये हमारा यूआरएल है, मैं एक बार इसको चेक करके दिखा देता हूँ कि हमको यहाँ पे डेटा मिला है या नहीं। मैं एक बार इसको गूगल पे जैसे सर्च करता हूँ इसको मैं, ठीक है? तो आप जैसा देख सकते हो कि हमको यहाँ पे पूरा की पूरा जो डेटा है हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा हमारे जो पैरामीटर्स आ रहे थे, कॉलम्स आ रहे थे, वो हम फेच करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम सेम ही कोड यूज करेंगे, इसी को हम ऊपर से कॉपी कर देते, काम करते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम यूआरएल चेंज कर देंगे, ओके, एंड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंड हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सेशन हमको चाहिए होंगे, ठीक है? इसको रन करेंगे, सेशन हमको चाहिए, हमको हेडर्स चाहिए,
हेडर्स हमारे पास आ गए एंड हम इसको रिक्वेस्ट देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आ चुका है। अब हम इसको जेसन में भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब एक बार हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा डेटा कैसा आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एकदम सही डेटा आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए ये ओपी डेटा चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारा पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है। ओके, अगर हम ये करते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट आई थिंक नहीं होगा ये। एक बार, एक सेकेंड। रिजेक्ट डेटा है हमारा, ठीक है। ये हमारा रिजेक्ट डेटा है, ठीक है, इसको पहले हमको फेच करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, रिजेक्ट डेटा हमारा है, उसके अंदर हमको चाहिए ओपी डेटा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारा पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है। ओके, एंड हम इसको रन करते हैं। ओके, तो अब जैसा आप देख सकते हो हमारे पास अब पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम एक बार डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। डीएफ हम यहाँ पे करते हैं एंड हम इसको लिखते हैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ओके, एंड हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक टेबल फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हो हमारे पास में यहाँ पे पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है। जो जो हमको चाहिए था वो पूरा आ चुका है। यहाँ पे सारे कॉलम्स दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉलम्स हाइड हैं, ठीक है। बट अभी हमने चेक किया था कि हमको डेटा वे का सारा डेटा मिल रहा था, ठीक है। तो ये अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक जगह कंबाइंड कर देंगे और फिर हम उसको उसका फ्रंट एंड वगैरह तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया है, ठीक है। ये हमारा कोड था, ये वाला, ये हमारा पेरेंट निफ्ट का एनएससी का वेबसाइट से हम डेटा फेच कर देते हैं, जो हमारा यहाँ पे डेटा आ गया था, ठीक है। और उसके बाद में हम ऑप्शन गिग्स का डेटा फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो भी, क्योंकि मैं लंबी वीडियो बनाता हूँ तो उसको ज़्यादा लोग वॉच नहीं करते उस पर, तो वो ज़्यादा रैंक नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब से मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा 10-10 मिनट की, कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वीडियो को, और मैं और अगर किसी ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसमें पैरामीटर्स को ऐड करेंगे एंड हम इसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इसको कैसे सेल कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।